I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Guys, right behind me is the mini England of India. सोने की चिड़िया जो भी आप कहना चाहें. So I'm standing in front of Kolar Goldfields, which was owned by Bharat Gold Mining Limited, which is BGML, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दूसरे एपिसोड में दिखाया था. But this one I have actually differentiated, segregated, because this is regarding the another gold which is standing right behind me, as per me, मेरे लिए. तो इसमें कुछ 25,000 के आसपास का कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है मैंने, विच आई थॉट कि इज़ रिलेवेंट टू मी, जो मेरे लिए रिक्वायर्ड था. तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि व्हाट ऑल आई हैव कस्टमाइज्ड इन माय डोमिनार 400 BS6. लेट्स हैव अ लुक. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम पहले आगे से शुरू करेंगे. मैंने सबसे ज़्यादा जो हर वीडियो में बोला है कि मुझे वाइज़र से दिक्कत थी, वाइज़र से, क्योंकि ये विंड ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं रोकता था. तो वाइज़र सबसे पहले मैंने चेंज करवाया. ये बाइक को मैं पहले लेकर के गया था बाइकर एंड मोर, जो बिल्लू भाई सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर. लेकिन वहाँ पर उन्होंने दे हैव स्टॉकिंग द फ्रंट वाइज़र फॉर डोमिनार. तो आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम लूविया, which you can see on the screen. So this is the one which is suitable for BS6 2019 and 2020 Dominar. आउट ऑफ फोकस मत हो मेरे भाई, ठीक है. तो ये वाइज़र और इसके साथ और भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ थी जो मैंने ऑर्डर करके मंगाया था. वो आपको रेट कार्ड में इन द मीन वाइल बीच में प्रेजेंट कर दूंगा. तो फर्स्ट थिंग वाज द वाइज़र. अलॉन्ग विथ इट I have ordered the same from Luvia, the number plate extender. Number plate यहाँ पे आता, and that could strike actually this particular windshield. तो उसका एक नंबर प्लेट एक्सटेंडर मैंने मंगाया था. तो वो windshield and this particular fog light extender, ये तीनों चीज़ लूविया से है. एक और चीज़ है लूविया से पीछे, विच इज़ द बैक रेस्ट, एज यू कैन सी विद द होलोग्राम ऑफ लूविया. बट वो पीछे जाएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे. तो दिस ऑल थिंग
I have chosen for Dominar 2019 and 2020 BS6 model and it has perfectly fitted. तो ये चीज़ें लूविया से आई हैं, इस स्क्रू में माउंटेड है ये एक्चुअली, द फॉग लाइट एक्सटेंडर. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ऐसे कॉस्ट बता देता हूँ. दिस इज़ ऑफ 1650, दिस इज़ ऑफ 450 द नंबर प्लेट एक्सटेंडर, एंड दिस इज़ अगेन ऑफ 450 द फॉग लाइट होल्डर अंडरनीथ योर हेडलाइट. तो ये लुविया से आए थे. एंड द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग दैट आई हैव प्लेस्ड इज़ दिस पर्टिकुलर फॉग लैम्प और द एक्स्ट्रा LED लाइट. इट कम्स विद दिस पर्टिकुलर रबर, क्या कहते हैं इसे, और एक्स्ट्रा लेयर है, बिकॉज इसके नीचे जो है वो वाइट कलर की LED है, बट दिस इज़ बेसिकली द स्प्लिटर इन येलो कलर. यू हैव इट इन प्लेन वाइट कलर एज वेल, एंड a simple protector as well for protecting the LEDs. हो जा, फोकस हो जा प्लीज़. या इसकी रोशनी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, अभी तो दिन है इसलिए इतना पता नहीं चलेगा. सो दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग विच along with this housing which you can see over here, it comes with this housing and all the fitting and attachment. तो इसका प्राइस है 8700 के अराउंड ऑफ मैड डॉग. एंड द लाइट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. पहले जब ये नहीं आया था तो उस टाइम पे मैंने इसको यहाँ पे माउंट करवाया हुआ था, विच वॉज लुकिंग वेरी ऑड एंड वियर्ड एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द लुक ऑफ द बाइक, बट दिस वन इज़ क्वाइट कंपैटिबल एंड लुक डिसेंट. तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. एंड ये मैंने बाइकर एंड मोर से लिया था. बाइक एंड बाइकर्स क्या नाम है उनका, जो भी है, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो दिस इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग. और इसका यूज़ भी है इफ़ यू आर राइडिंग इन द नाइट, या फिर अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कहीं कहीं फॉग मिलता है या क्लाउड्स भी मिलते हैं. तो दिस इज़ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग. अपार्ट फ्रॉम द लाइट, येस, लाइट ऑफ डोमिनार इज़ सेल्फ सफिशिएंट, बट स्टिल यू शुड हैव सम एक्स्ट्रा लाइट फॉर हेल्पिंग यू इन द नाइट इफ़ यू आर राइडिंग. ऐसे तो नाइट में अवॉइड ही करना चाहिए. नाउ फ्रॉम हेयर वील कम ऑन टू द स्टीयरिंग साइड. स्टीयरिंग साइड में मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवाया. नो हैंडल बार एक्सटेंडर, नथिंग एज सच. बस ये मैंने एक बोबो का फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल माउंट लगाया है. एंड द प्राइस ऑफ दिस थिंग इज़ ऑफ 1800. ये 1800 का है, बिकॉज़ द वन विच आई वाज यूजिंग, जो मैंने अपने थंडरबर्ड से निकाल करके इसमें लगाया था, वो हाई स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा शिवर करता था. एंड देयर वाज ऑलवेज अ थ्रेट कि आई वुड लूज़ माई आईफोन, बिकॉज दैट्स द फ़ोन विच आई यूजुअली यूज़ फॉर नेविगेशन. क्योंकि छोटा है एंड इट्स कम्पैक्ट, उतना बड़ा नहीं लगता है, तो इट्स क्वाइट नाइस. तो this is of 1800, and this is again for switching on your fog light. तो ये तो उसी की असेंबली के साथ आया था. Now if we move towards the back, so I have mounted this particular thing which is the Zana saddle stay. ये Zana का saddle stay है जो मैंने लगवाया है, and it looks something like this. इसका जो प्राइस है इज़ ऑफ 2800. ये 2800 रुपये का ज़ाना का सैडल स्टे है. एंड सैडल बैग मैंने ज़ाना का नहीं लिया. सैडल बैग आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़न विच इज़ ऑफ अराउंड 2000 रुपीज़. एंड द रिव्यूज़ वेर क्वाइट इम्प्रेसिव. सो मैंने कहा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, कितने दिन चलता है देखते हैं. क्योंकि अभी आई हैव रिसेंटली अगेन स्टार्टेड touring on the bike. As you can see, now we are at Kolar Goldfield, which is around 105 kilometers from my home. तो धीरे धीरे करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को जज करेंगे, थोड़ा सा मशीन पे भी ट्रस्ट बनेगा. एंड देन आई स्टार्ट टूरिंग towards the longer places, longer distance, sorry, not longer places, longer distance actually. तो थोड़ा सा 100 किलोमीटर चल के आई है, और मौसम देख सकते हो, रास्ते में बारिश भी मिली थी हल्की सी, तो दैट्स व्हाई इट्स बिट डर्टी. अदरवाइज़ मैं अपनी बाइक को बहुत साफ़ सुथरी रखता हूँ. सो
This is of 2700, and this thing I was talking about, this is the Luvia backrest, which is again compatible with the Dominar 2019 and 2020. इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा along with the stability and how rigid it is कि बहुत माइन्यूट चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है. अगर आप कैमरा में देखेंगे तो इसके नीचे आपको एक छोटा सा रबर की कुशनिंग दिखाई देगी, विच इज़ फॉर नॉट डैमेजिंग दिस पर्टिकुलर प्लास्टिक इफ़ इन केस अगर इस पे लोड पड़ता है. तो अगर ये उस पे लोड पड़ेगा तो दैट स्मॉल थिंग वुड प्रोटेक्ट स्क्रैचिंग दिस पर्टिकुलर प्लास्टिक. तो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन that I have done. Along with it, जो saddle stay, fog light, and what else it was, मतलब मोबाइल माउंट, ये तीनों को लगाने का जो लेबर बाइक एंड बाइकर्स के नीचे जो गैराज है उसने लिया था, that was of 1050 रुपीज़, 1050 रुपीज़. और बाकी चीज़ें जो मैं कुरियर करके लुविया से मंगाया था तो वो मैंने एक लोकल मैकेनिक मेरे घर के बगल में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, उनको दिया था लगाने के लिए. ही हैज़ टेकन 400 रुपीज़ बिकॉज सम एक्स्ट्रा स्क्रूज वाज रिक्वायर्ड. तो इट वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब लोकल मैकेनिक भी वो विंड वाइज़र और ये फॉग लैम्प का स्टैंड एंड ऑल दोस थिंग्स वो माउंट कर सकते हैं आराम से. तो इट वाज yesterday that I have completed the required modification which was means as per me, जो मुझे लगता था कि चाहिए ही चाहिए for touring purpose. तो ये कल ही complete किया है मैंने, and today I have bought it for approximately 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर्स to and fro. तो up till now nothing as such. एक जगह पे मैं थोड़ा सा हाई स्पीड ले गया था, तो फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट RPM के बगल में जो रेड कलर का वो है दैट वाज फ्लैशिंग. अदरवाइज़ अभी तक तो कोई एरर, कोई वार्निंग, कोई मैसेज, कोई ओवर हीटिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. तो स्लोली आई एम गेनिंग ट्रस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई मस्ट से कि इसका एवरेज जो है आप अगर 5000 से 7000 के बीच में रखेंगे तो इट विल स्टे अराउंड 25 to 27 kmpl. एंड मेरे को थोड़ा सा लगा कि अगर आप ये लगाते हैं विच इज़ द विंड शील्ड, द एक्सटेंडेड विंड शील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट विच आई हैव प्लेस्ड, तो थोड़ा सा आपको हाई स्पीड में मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आपका हैंडल हार्ड होगा. इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए बिकॉज़ आई थिंक सो कि ऑन द मैन्यूवरिंग पर्सपेक्टिव वो वाला जो छोटा वाला वाइज़र था वॉज क्वाइट एफिशिएंट. इसमें मैं अगर 100 के आसपास चला रहा हूँ, 100 110 जो भी है, अगर उसके आसपास हाईवे पे चला रहा हूँ तो एकदम से हाथ में लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो भारीपन आ गया है हैंडल में. एंड अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज़ बाइक हार्डली 1000 किलोमीटर चली है. तो वो टी या बॉल बेरिंग का इशू नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने ऐसा कोई ऑफ रोड भी नहीं किया. यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ रोड पे लेकर के आया हूँ मैं, वो भी ऑफ रोड नहीं कहोगे, इज़ रफ पैच, नॉट दैट विद सो मच ऑफ ग्रेवल एंड बम्प्स. तो हैंडल का बॉल बेरिंग का कोई इशू नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर विंडशील्ड. आपको थोड़ा सा हाथ में दर्द होगा, हैंडल संभालने में थोड़ा सा झटके लगेंगे, और अगर आप एकदम से काट रहे हो हाई स्पीड में मैन्यूवर करने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा. तो ठीक है, मतलब डोले शोले भी बन रहे हैं इसी बहाने. हाँ, बाकी सब सही है. अब इसकी सेकेंड सर्विस की तरफ जाएंगे तो बताएंगे कि और कुछ एक्सटर्नल खर्चा आया है कि नहीं आया है. ब्रेकिंग जो है, जो डोमिनार में पहले मेरे को लगा था, बट नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज़ कि हमेशा मेरे को थोड़ा सा ना पैनिक ब्रेकिंग करना पड़ रहा है. मैं थोड़ा सा पैनिक ब्रेकिंग के साइड पे ही जा रहा हूँ. मतलब जो इनिशियल बाइट होता है ना कि एकदम हल्का सा ब्रेक
मतलब दबाया और आपको एकदम ब्रेकिंग फ़ील हो। डोमिनार में वैसा नहीं है, डोमिनार में ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्रेक लगता है, एकदम पैनिक ब्रेकिंग नहीं होती है। तो अगर आपको ब्रेक का वो बाइट चाहिए, इनिशियल बाइट चाहिए कि एकदम ज़ुप करके रुके, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स जो मैंने चलाई थी, जिसमें कि हल्का सा दबाते ही इनिशियली ही बहुत ज़्यादा तगड़ी बाइट मिलती है, एकदम गाड़ी रुकने लगती है। तो ब्रेकिंग के लिए इट्स गुड अगर आप ज़ोर से लगाएं। धीरे लगाएंगे और सोचेंगे कि नहीं नहीं यार ये तो ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा सा हर चीज़ का क्लच डिफरेंस होता है सब में, बाइक में किसी में एक्सीलरेशन का डिफरेंस होता है, तो किसी में शॉकर का डिफरेंस होता है। तो हर बाइक अपने आप में थोड़ा सा अलग है, ये चीज़ मुझे भी समझनी पड़ेगी। मैं किसी और बाइक से अगर इसको कंपेयर करूं तो दैट वुड नॉट बी फेयर, बट ऐसा नहीं है कि कुछ फ्लॉ है, इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू गेट यूज्ड टू ऑफ इट। आपको उस तरह से ब्रेक मारने का, उस तरह से क्लच का, उस तरह से एक्सेलरेशन की आदत डालनी पड़ेगी। Once you are used to of it, this machine is good for touring purpose। अभी भी बहुत सारे बम्प्स जैसा कि ये वाले हैं इस टाइप के जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पे मैं उछाल उछाल करके लेकर के आया एंड नीचे कहीं टच नहीं हुआ एंड शॉक एब्जॉर्बर वाज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। तो थोड़ा सा मुझे अभी जैसे 1000 किलोमीटर ही हुआ है, तो थोड़ा सा आदत डालने में टाइम लगेगा। यू गेट यूज्ड टू ऑफ अ न्यू मशीन दैट यू हैव बॉट, कार हो कुछ भी हो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन समझने में गाड़ी का टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। बट जैसा मैं शुरू में कहता था कि यार ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रेकिंग अच्छी है, बट इसका थोड़ा सा ज़्यादा दबाने पे वो बाइट मिलना शुरू होता है, कि वो जर्क मिलना शुरू होता है कि हाँ अब गाड़ी रुक रही है। तो दैट वाज ऑल विच आई वॉन्ट टू शो फॉर माई डोमिनार मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा बी रोल दिखाता हूँ और वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे सेफ एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 1400 सब्सक्राइबर है, प्लीज़ थोड़ा सा और बढ़वाइए। इट gives me the motivation. Anyway, I am not earning anything from the YouTube, but it gives me motivation for creating another content, looking out for another destination and so on and so on. So please like, share and subscribe and enjoy the B-roll of my bike. Thank you. So वीडियो एंड करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार आपको अपनी फॉग लाइट दिखा दूँ। So this is the normal low beam of Dominar. Now this is the high beam of Dominar. So low beam और high beam अभी दोनों जल रहा है and now I'm going to switch on the Mad-Hog fog light. So this is the effect. So ये है हमारी combination of the headlight and the Mad-Hog. Impressive now. Normal headlight, Mad-Hog. Normal headlight, Mad-Hog. तो डोमिनार की सारी लाइटें तो बंद हो नहीं सकती हैं, बिकॉज़ लो बीम तो जलता ही रहेगा अगर इंजन स्टार्ट है तो। बट आगे से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है इसका। भाई आउट ऑफ फोकस हो गया फ़ोन ही।